کی بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سردی کی شدت برقرار، ٹھنڈی ہواؤں کے باعث پارہ 6 ڈگری ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ دنوں میں سردی بڑھنے کی پیش گوئی۔ ادھر پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کی وجہ سے بند۔ کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار رہیں۔ فضائی مسافروں کو بھی دھند کے باعث مشکلات اٹھانا پڑیں۔ متعدد پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ لاہور میں سردی کی شدت برقرار ہے، ٹھنڈی ہواؤں کے باعث پارہ 6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں موسم میں تبدیلی متوقع ہے۔ 20 سے 23 جنوری کے دوران لاہور میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ صبح کے اوقات دھند کے باعث کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار رہیں۔ فضائی مسافروں کو بھی دھند کے باعث مشکلات اٹھانا پڑی۔ متعدد پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ دوسری جانب شہر کے مختلف علاقوں میں آلودگی کی صورتحال تشویشناک رہی۔ چمن پارک میں آلودگی کی شرح 360، برکی روڈ پر 350 ریکارڈ کی گئی۔ کینٹ میں آلودگی کی شرح 271، عسکری 10 میں 260، اقبال ٹاؤن میں 225، DHA فیز 5 میں 220، ماڈل ٹاؤن میں 215 اور گلبرگ 2 میں 200 ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز، ماسک کے استعمال اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چھٹیاں ختم، سکول 19 جنوری کو کھلیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن سے نوٹیفیکیشن جاری۔ اسکولوں کے نئے اوقات کار بھی آ گئے۔ اسکول صبح 8:45 پر لگیں گے۔ دوپہر 1:30 بجے چھٹی ہوگی۔ جمعے کے روز بچے 12:15 بجے تک پڑھائی کریں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ایک ماہ بعد 19 جنوری سے تعلیمی ادارے کھلنے پر تمام سرکاری اسکول مکمل طور پر فعال کرنے کا حکم دے دیا۔ اسکول کھلنے سے قبل صفائی ستھرائی مکمل کرنے کے ساتھ محفوظ اور بہترین ماحول یقینی بنایا جائے گا۔ اسکولوں میں تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی حاضری کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسکول کھلنے کے بعد تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیوں میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ تمام انتظامی، تعلیمی اور سپورٹ انتظامات ہر صورت پہلے ہی مکمل کیے جائیں گے۔ CEOs ایجوکیشن کو احکامات پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔ احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی وارننگ اور غفلت یا لاپرواہی برتنے پر تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ جنید ریاض، سٹی 42۔ رمضان نگہبان پیکج کے لیے تیاریاں۔ مستحق خاندانوں میں 30 ارب روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ رواں سال بھی فی خاندان 10,000 روپے ملیں گے۔ مستحق خاندانوں تک امدادی رقم بروقت پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی گئی۔ حکومت نے رمضان نگہبان پیکج 2026 کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ رواں سال 30 ارب روپے مستحق خاندانوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ فی خاندان 10,000 روپے نقد امداد فراہم کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اس بار بھی پچھلے سال کی طرز پر رمضان نگہبان پیکج پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ مستحق خاندانوں کی نشاندہی، ڈیٹا کی جانچ پڑتال اور ادائیگی کے نظام کو حتمی شکل دینے کے لیے متعلقہ محکموں نے عملی ورکنگ شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق رمضان نگہبان پیکج کے ذریعے عوام کو براہ راست مالی ریلیف دیا جائے گا تاکہ رمضان المبارک کے دوران روزمرہ اخراجات میں ممکنہ حد تک سہولت فراہم کی جا سکے۔ عالمی بینک کے فنڈز کارکردگی سے مشروط تھے۔ مالی سال 2026 سے 35 تک اصلاحات کے بغیر رقم نہیں ملے گی۔ حکومت نے 10 سالہ پلان کا فریم ورک تیار کر لیا۔ عالمی بینک 80 ارب ڈالر کے منصوبوں پر عمل کرائے گا۔ بچوں کی غذائی قلت، تعلیم اور ماحولیات پر اربوں ڈالر خرچ ہوں گے۔ عالمی بینک فنڈز اب کارکردگی سے مشروط ہوگا۔ مالی سال 2026 سے 35 تک اصلاحات کے بغیر رقم نہیں ملے گی۔ حکومت نے عالمی بینک سے 10 سالہ پلان کا فریم ورک تیار کر لیا۔ عالمی بینک آئندہ 10 سالوں میں 80 ارب ڈالر کے منصوبوں پر عمل درآمد کرائے گا۔ عالمی بینک کے ساتھ فریم ورک کی منظوری کے بعد پنجاب میگا منصوبہ شروع کرے گا۔ 20 ارب ڈالر حکومت اور گورننس، 20 ارب ڈالر نجی شعبے کے لیے مختص ہوں گے۔ بچوں کی غذائی قلت، تعلیم اور ماحولیات پر اربوں ڈالر خرچ ہوں گے۔ پنجاب حکومت کو عالمی بینک فنڈنگ کے لیے اپنے وسائل بھی لگانا ہوں گے۔ ہر منصوبہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ میں 2 سال بعد بزنس پلان اپ ڈیٹ ہوگا۔ 2035 تک جاری رہنے والا فریم ورک پنجاب میں روزگار کے مواقع بھی پیدا کرے گا۔ رجسٹرڈ گاڑی مالکان کے لیے اچھی خبر۔ دیگر صوبوں اور وفاق میں رجسٹرڈ گاڑیاں اب پنجاب میں رجسٹرڈ ہو سکیں گی۔ شہری ٹرانسفر فیس کے ساتھ معمولی فیس ادا کر کے گاڑی رجسٹر کروائیں گے۔ آن لائن چیک کر کے گاڑی پنجاب میں رجسٹرڈ کی جائے گی۔ ٹرانسفر اور رجسٹریشن کا آغاز رواں ماہ سے ہو گیا۔ اب دیگر صوبوں اور وفاق میں رجسٹرڈ گاڑی مالکان پنجاب میں اپنی گاڑی ٹرانسفر کروا سکیں گے۔ شہری ٹرانسفر فیس کے ساتھ معمولی فیس ادا کر کے گاڑی رجسٹرڈ کروا سکیں گے۔ ایکسائز حکام کے مطابق گاڑی جس صوبے میں رجسٹرڈ
होगी वहां से एनओसी लेकर आएंगे। ऑनलाइन चेकिंग के बाद गाड़ी पंजाब में रजिस्टर्ड करके नंबर दर्ज किया जाएगा। डायरेक्टर एक्साइज उमर शेर चट्ठा का कहना है PPITB के ताउन से सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है। रवा माह से पंजाब भर में ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया जाएगा। जिनकी रहाइश पंजाब में है, अगर उन्होंने दूसरे सूबों की गाड़ियां, बसें, ट्रक, कारें वो रखी हुई हैं और वो इस्तेमाल करते हैं, तो हमने उनकी सहूलत के लिए और गवर्नमेंट के फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए वो हम दोबारा री रजिस्टर करेंगे। उसकी फीस काफी नॉमिनल है। डायरेक्टर एक्साइज उमर शेर चट्ठा का कहना है कि गाड़ियां पंजाब की सड़कें इस्तेमाल करती हैं, लेकिन टैक्स दूसरे सूबों को देती हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की तकरीब चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने जुनैद सफदर और शानसे अली रोहेल का निकाह पढ़ाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की तकरीब। जुनैद सफदर सफेद शेरवानी ज़ेब-ए-तन किए और सेहरा सजाकर बारात लेकर दुल्हन को ब्याहने के लिए लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी पहुंचे। बारात मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में जाती उमरा से रवाना हुई। बारात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, अजीज़ो अकारब, वफाकी और सूबाई वुज़रा, सियासी शख्सियात के अलावा मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जुनैद सफदर की दुल्हन शानसे अली रोहेल मारूफ सियासी शख्सियत शेख रोहेल असगर की पोती और अली रोहेल असगर की साहबजादी हैं। जुनैद सफदर के वलीमा की तकरीब इतवार के रोज जाती उमरा में होगी, जिसमें 800 मेहमानों को मदु किया गया है। मेहंदी की तकरीब जुमा को जाती उमरा में हुई, जिसमें दुल्हा दुल्हन समेत दोनों खानदानों के करीबी अजीजों कारब ने शिरकत की। शादी की 3 रोजा तकरीबात के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। के आटे के बाद चावल की कीमत में इजाफा। प्रीमियम क्वालिटी के चावल की कीमत 20 रुपये किलो तक बढ़ गई। प्रीमियम क्वालिटी का चावल 570 रुपये किलो की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। उधर सब्जियों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया जा सका। आलू 25 के बजाय 60 रुपये में फरोख्त, जबकि प्याज 60 के बजाय 120 रुपये किलो बेचा गया। शहर में आटे के बाद चावल की कीमत में इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में 10 रुपए इजाफे से प्रीमियम क्वालिटी के चावल 570 रुपए किलो की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं। प्रीमियम क्वालिटी की दूसरी किस्म के चावल 600 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जियों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया जा सका। आलू 25 के बजाय 60 रुपए फरोख्त होने लगा। प्याज 60 के बजाय 120 रुपए किलो बेचा जा रहा है। टमाटर 70 के बजाय 80 रुपए किलो फरोख्त हुआ। भिंडी, करेले, मटर, गोभी भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बाइस रोजमर्रा राशन खरीदना मुश्किल हो चुका है और बुनियादी अजनास कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं। सारिफीन ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि बुनियादी अशिया खोरोनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर समेत दीगर अथॉरिटीज़ की नाअहली। लाहौर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के हेल्थ प्रोफाइल ना बन सके। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चों के हेल्थ प्रोफाइल ताहाल तैयार ना किए गए। डायरेक्ट पब्लिक इंस्ट्रक्शन से स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों की तादाद मांग ली गई। मैट्रिक और इंटर में ज़ेर तालीम बच्चों की तादाद 2 रोज में फराहम करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर समेत दीगर अथॉरिटीज की नाअहली सामने आ गई। 3 साल गुजर गए, लेकिन लाहौर में सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चों के हेल्थ प्रोफाइल तैयार ना हो सके। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों की तादाद मांग ली। मैट्रिक और इंटर में ज़ेर तालीम बच्चों की तादाद 2 रोज में फराहम करने का हुक्म दे दिया। ज़ेर तालीम बच्चों में कितने फीसद का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जा चुका है फौरी बताया जाए। महकमा स्कूल एजुकेशन की मुतादिद बार हिदायत के बावजूद हेल्थ प्रोफाइल तैयार ना हो सके। 3 साल कबल साबिका दौरे हुकूमत में बच्चों के हेल्थ प्रोफाइल बनाने का आगाज किया गया था। हेल्थ प्रोफाइल में बच्चों की सेहत, बीनाई, कद और जिसामत की रिपोर्ट मुरतब की जाना थी। DPI सेकेंडरी के मुताबिक मुकर्रर डेडलाइन में हेल्थ प्रोफाइल का डाटा फराहम ना किया गया तो सरबराह अथॉरिटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा सेहत के अहम ओहदे खाली। DG हेल्थ पंजाब का ओहदा 4 माह से खाली। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का भी सरबराह तैनात ना हो सका। डेंगू समेत मुतादी अमराज के प्रोग्राम का भी मुस्तकबिल
सरबराह मौजूद नहीं। डायरेक्टर हेडक्वार्टर EDM के ओहदे भी खाली। महकमा सेहत आर्जी चार्ज देकर काम चलाने में मसरूफ। महकमा सेहत की अफसरशाही की लापरवाही के बायस अहम ओहदों पर तैनातियां ना हो सकी। DG हेल्थ पंजाब का ओहदा 4 माह से खाली पड़ा है। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का सरबराह भी तैनात ना हो सका। डेंगू समेत मुतादी अमराज की रोकथाम के प्रोग्राम का भी मुस्तकिल सरबराह तैनात नहीं किया गया। डायरेक्टर हेडक्वार्टर, DG ऑफिस और ADM के ओहदे भी खाली होने से इंतजामी अमूर मुतासिर हो रहे हैं। महकमा सेहत DG हेल्थ समेत अहम ओहदों पर आर्जी चार्ज देकर काम चलाने में मसरूफ है। मुस्तकिल DG हेल्थ ना होने से सेहत आमा के प्रोग्राम्स बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा सेहत के ओहदे खाली। DG हेल्थ पंजाब का ओहदा 4 माह से खाली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सर्द रातों में रेलवे जंक्शन पर रेलगाड़ी के इंतजार में बैठे मुसाफिरों का इंतजार तवील हो जाता है। सर्दी की शिद्दत बाज़ औकात घंटों लेट गाड़ियां मुसाफिरों को खुले आसमान तले सोने पर मजबूर कर देती हैं। इंतज़ार का एक लम्हा सदियों पे मुहित होता है। रात को रेलवे स्टेशन पर बैठे मुसाफिर इंतज़ार से किस कदर बेजार, किस कदर परेशान और सर्दी में किस कदर ठठरते नज़र आते हैं, ये वो मुसाफिर ही जानते हैं। लेकिन उसकी कुछ अक्सबंदी करके हम आपको भी दिखाएंगे और आपको भी बताएंगे कि उनके हालात और वाक़ियात रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करते क्या होते हैं। रेलवे स्टेशन पर सर्दी से कपकपाते मुसाफिर जा बजा चादर और लिहाफ ओढ़े बेंचों किसी मुनासिब पोर्ट में इंतजार की घड़ियां खत्म करते दिखाई देते हैं। कपकपाते जवान मुसाफिर, खांसते बूढ़े, माँ बाप के साथ आए इंतजार के पेश नजर बेचैन बच्चे इंतजामी मामलात पर नाला और इंतजामिया के खिलाफ कई शिकायत रखते हैं। ठंड है, मुसाफिरों की भी तकलीफ है, पुलिस भी तंग करते, फिर किधर से नहीं आया, फिर उल्टा जो है ना आदमी को मुसीबत में डाल लेते हैं। मुसाफिर इंतजार से बेजार, ख्यालात के समंदर में गोताजन, कुलियों और काम करते अमले की कदमों की चाप के सिवा कुछ नहीं सुनते। शदीद धुंध, ठडरती सर्दी, खनक रात किसी साइबान की तलाश में दरबदर फिरते मुसाफिरों की बेबसी में बेहिसाब इजाफा कर देती है। परेशानी होती है सर्दी में इंसान को अपना वेट करना, और लेकिन अपना वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर बैठने का, ट्रेन बड़ी लेट है। हर शख्स का एक ही मुतालबा है, ट्रेनों की आमदोरफ्त को पाबंद वक्त और रेलवे स्टेशन में एक बेहतर इंतजारगाह का क़याम अमल में लाया जाए ताकि मुसाफिर इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तमाम सूरत हाल को देख के मुझे दाग देलवी का एक शेर याद आ जाता है। वो कहते हैं कि गज़ब क्या तेरे वादे पे एतबार किया, सारी रात क़यामत का इंतज़ार किया। इस हवाले से आला हुकाम को कुछ सोचने की ज़रूरत है। कैमरामैन सज्जाद के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42, लाहौर। रात 10 बजे के बाद शादी तकरीबात पर आयद पाबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। रायवन रोड पर वाक़ शादी हॉल्स में रात 10 बजे के बाद भी तकरीबात जारी। तफसीलात जान लेते हैं रुमेल इलियास। रुमेल बताइएगा। रात 10 बजे के बाद शादी तकरीबात पर आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल बताइएगा। जी बिल्कुल जी, शहर में रात 10 बजे के बाद शादी तकरीबात पर आयद पाबंदी की खुल्लम खुला जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो जारी हैं। और रायवन रोड पर वाक़या मुतादिद जो शादी हाल्स हैं वहाँ पर रात 10 बजे के बाद भी जो तकरीबात हैं वो जारी हैं। मेहमानों की आमद और रफ्त का जो सिलसिला है वो भी जारी है। और जो शादी हाल के मालकान हैं वो रात 10 बजे के बाद जो ये तकरीबात है ये बंद करने के अहकामात से इनकारी हैं और बगैर किसी खौफ और डर के ये लोग अपने 10 बजे भी तकरीबात जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब पुलिस और जो जिला इंतजामिया है वो रात 10 बजे के बाद जारी इन तकरीबात पर खामोशी बन चुकी है और हम देख रहे हैं कि कुछ जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही हैं। ज़राए का ये कहना है कि ये जो शादी हाल मालकान हैं ये बड़े बाअसर हैं और इसीलिए जो कानून है वो इनके खिलाफ हरकत में नहीं आता है। तो जो शहरी हैं, आम शहरी, उनका ये शिकवा है कि कोई आम आदमी जो है वो अगर कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त इक़दामात अमल में लाए जाते हैं, मगर जब जैसे ही किसी बाअसर बंदे की बात आती है तो तब जो कानून है वो सिर्फ खामोश तमाशाई बनकर रह जाता है। और शहरी अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो कानून है वो हरकत में आए और रात 10 बजे के बाद आए जो पाबंदी है तकरीबात जारी रखने पर, इनकी खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएं। जी ठीक है रुमेल, आप हमारे साथ रहिएगा। आफाक नज़ीर भी हमारे साथ मौजूद है। आफाक, आप ये बताइएगा कि जिस तरह से रुमेल बता रहे हैं कि हॉल्स मालिकान जो है वक्त की पाबंदी नहीं कर पा रहे हैं, और क्या ये वन डिश की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है? आफाक नज़ीर।
बिल्कुल जी, बरकी रोड पर वाक़ मुतादिद शादी हॉल्स और फार्म हाउसेज में हुकूमती कवानीन की खुला जो है वो खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं। वन डिश पॉलिसी और शादी की तकरीबात के जो मुकर्रर औकात हैं उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिनमें किंग्सवुड, गार्डन, फेस्टिव और दीगर नामवर शादी हॉल्स जो हैं वो शामिल हैं, जो रात देर तक तकरीबात जारी रखे हुए हैं, जबकि मेहमानों को जो है वो एक से ज़ायद यहाँ पर खाने भी पेश किए जा रहे हैं। ऐसे में ज़राए के मुताबिक जो हॉल्स मालिकान हैं वो न सिर्फ वक्त की पाबंदी को हवा में उन्होंने उड़ा दिया है, बल्कि जो वन डिश से मुतल्लिक कवानीन है उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। ऐसे में जो मुतल्लिका इंतजामिया है वो मंजर आम से गायब है, जो इंतजामी उनकी कारकर्दगी है उसके ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर और मेरे लिहाज अपडेट करने के लिए। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास मिसाली गाँव प्रोग्राम में पेशरफ़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में एक इजलास के दौरान बताया गया कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ के मिसाली गाँव प्रोग्राम के तहत पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी ने 359 देहात की स्कीमों के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 224 देहात के लिए वर्क अवार्ड और इब्तदाई काम शुरू किया जा चुका है। इजलास में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ और एडिशनल सेक्रेटरी अहमद सुहेल कैफी ने भी शिरकत की। PRMSC के अफसरों ने मिसाली गांव प्रोग्राम पर इजलास को ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि मिसाली गांव के तहत देहात में जदीद सहूलियात मुहैया की जाएंगी। लाहौरियों के लिए तारीखी ग्रेटर इकबाल पार्क में तफरीह का एक और मंसूबा। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने इकबाल पार्क में फैमिलीज़ के लिए 2 एकड़ पर मुहित प्ले लैंड का इफ्तिताह कर दिया। वाइस चेयरमैन PHA लाहौर ग़ज़ाली सलीम बट और DG PHA राजा मंसूर भी हमरा थे। मुतलका हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि प्ले लैंड को डिज्नी लैंड की तर्ज पर तामीर किया गया है और बच्चों के लिए मोशन राइड की सहूलत मौजूद है। सफारी, मोटर बाइक, ब्रेक डांस, मेरी गोल्ड राइडर और पैराइड शिप समेत मुतादिद झूले तफरीह फराम करेंगे। झूलों और दीगर मटीरियल के लिए UET के फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किए गए हैं। वज़ीर हाउसिंग का कहना था कि पार्क्स में बच्चों और फैमिलीज़ के लिए मुनफरिद तफरीह सहूलियात बेहद ज़रूरी हैं। सूबाई वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी शाफ़ी हुसैन के जामिया अशरफी आमद मौलाना फजल रहीम अशरफी के इंतकाल पर मुतक़लीन से इज़हार ताज़ियत किया। चौधरी शाफ़ी ने कहा कि मौलाना फजल रहीम अशरफी एक अजीम मजहबी स्कॉलर और कई दीनी किताबों के मुसन्निफ़ थे। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर चौधरी शाफ़ी हुसैन जामिया अशरफिया गए, जहाँ उन्होंने मोहतरम जामिया अशरफिया मौलाना फजल रहीम अशरफी के इंतकाल पर उनके अहल खाना से ताज़ियत की। सूबाई वज़ीर ने मरहूम के इसाले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख़ानी की। चौधरी शाफ़ी हुसैन ने कहा कि मरहूम ने पूरी ज़िंदगी दीनी तालीमात की तरवीज और अलूम इस्लामिया की खिदमत में गुजार दी। उनकी लाजवाल दीनी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मौलाना फजल रहीम अशरफी मरहूम के बेटे मौलाना ज़ुबैर हसन, भतीजे मौलाना असद उबैद, मुफ्ती अहमद अली और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में डिग्री शो का इनेकाद किया गया। तलबा ने अपने तख्लीकी और तहकीकी मंसूबे पेश करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में डिग्री शो हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। गैर मुल्की मेहमानों समेत फनून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात ने भी तकरीब में शिरकत की। मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने तलबा के तख्लीकी डिग्री प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। यंग स्टूडेंट्स जो कि अभी मैंने जो देखा था वो बैचलर्स की स्टेज कर थे कि दिस इज़ आई थिंक समथिंग दैट शुड बी टॉट मोर, और इसके ऊपर जो रिसर्च करके ये काम करते हैं उससे इनकी माइंड, हमारी यूथ की माइंड और इनकी सोच का पता चलता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अयाज सादिक ने कहा, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पाकिस्तान के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक है। यहाँ से फारगुल तहसील तलबा दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार अयाज सादिक ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात की और कहा कि अपोजिशन को एहतजाज का हक हासिल है, ताहम एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। जो एहतजाज है एहतजाज ज़रूर करें, मगर अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं, चीज़ों को आग नहीं लगाते, लोगों की जानों का ज़िया नहीं होता, तो फिर कर ले तो कोई किसी को एतराज़ नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था अपोजिशन असम्बली में आए और यहाँ अवामी मसाइल पर गुफ्तगू करे। मशवरा दे सकते हैं कि पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में आके काम करें, आवाम की बेहतरी के लिए जो मसाइल हैं हल करने के लिए वो कीजिए जो कि असल
काम है जो स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि हर मुल्क में माफियाज होते हैं और पाकिस्तान में भी हैं, मगर इनसे निपटने का अमल जारी रहेगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ उस्मान खादिम, कंबोज, सिटी 42। चौथी बैनुल-अक़वामी तहकीकी कॉन्फ्रेंस बराए मालियाती इल्मियात और इंसानियत चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फैकल्टी मेंबरान में सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स तकसीम की गईं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़रिए एहतमाम चौथी बैनुल-अक़वामी तहकीकी कॉन्फ्रेंस बराए मालियाती इल्मियात और इंसानियत का इनेकाद किया गया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर सिटी कैंपस प्रोफेसर डॉक्टर एहतशामुल हसन, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के डीन्स, रेक्टर्स, प्रोफेसर्स और तलबा ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए राना मशहूद अहमद खान का कहना था कि हमारा मकसद यूथ को ज्यादा से ज्यादा स्किल्स सिखाना है। दुनिया अब ओवरनाइट नताइज की तरफ जा रही है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। जो रिसर्चर्स आज यहाँ पर मुझे बताया गया कि बैठे हुए हैं, आपकी जो रिसर्च है इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी भी होनी चाहिए। सिर्फ डेस्क मतलब थ्योरीज बना देना, अब दुनिया इससे आगे निकल चुकी है। अब दुनिया उस तरह की रिसर्च मांगती है जो नाफिज भी हो सके, जिस पर अमल भी हो सके। प्रोफेसर डॉक्टर एहतशामुल हसन ने कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी एआई और रिसर्च के शोबों में काम कर रही है। मुस्तकबिल में कोई भी तालीमी इदारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो है ना, हमेशा उसका खासा रहा है कि हम लोग अप्लाइड रिसर्च करवाना चाहते हैं बच्चों को, डेस्क रिसर्च से हटाकर। हमारी जो रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान सुपीरियर यूनिवर्सिटी, हमें ये एक टास्क होता है कि हम लोगों ने यंग रिसर्चर्स को मौका देना है, अपने रिसर्च आइडियाज़ को प्रेजेंट करें और कैसे हम सोसाइटी को बेनिफिट दे सकते हैं इम्पैक्टफुल रिसर्च के जरिए। तकरीब के इख्तिताम पर राना मशहूद अहमद खान ने फैकल्टी मेंबरान में सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स तकसीम की। कैमरा टीम के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का 28वां कन्वोकेशन मुख्तलिफ फैकल्टीज से ताल्लुक़ रखने वाले 2109 तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मियां आमिर महमूद और CEO अखवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब ने खुसूसी शिरकत की। ऑफ सेंट्रल पंजाब में 28वीं कॉन्वोकेशन की तकरीब हुई। 253 तलबा को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया, जबकि एक तालिब इल्म को रोल ऑफ ऑनर्स और एक को मेरिट सर्टिफिकेट भी दिया गया। कॉन्वोकेशन में चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर UCP मियां आमिर महमूद, अखवत फाउंडेशन के CEO डॉक्टर अमजद साकिब और प्रो रेक्टर UCP डॉक्टर हमाद नवीद ने खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा, कॉन्वोकेशन बरसों की मेहनत का नतीजा और एक नए सफर का आगाज है। अब आपको किताबों की दुनिया से निकलकर अमली दुनिया में जाना है और फिर आपको उस तब्दीली का पैगंबर बनना है जिसकी ख्वाहिश 25 करोड़ अवाम के दिलों में हमा वक्त जिंदा रहती है। प्रो रेक्टर डॉक्टर हमाद नवीद ने तकरीब से खिताब में कहा, UCP को पाकिस्तान और बैरून मुल्क आला तालीम का रोशन मीनार बनाया है। इस साल UCP 2109 ग्रेजुएट्स की कामयाबी का जश्न मना रहा है। This year we celebrated 22 successful PhD defenses and 315 MPhil MSc defenses, highlighting our commitment to advanced research, critical inquiry and academic rigor. Our graduates are not only ready to excel in their fields, but to push the boundaries of knowledge, innovation and societal impact. तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने कॉन्वोकेशन में शिरकत की। इनका कहना था, UCP ने हमें सिर्फ तालीम नहीं दी बल्कि खुद पर यकीन करना भी सिखाया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का जो सफ़र था मेरा 6 इयर्स का था। मेरा बैचलर्स इधर से है और मास्टर्स भी मैंने इधर से किया इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज इनक्रेडिबल और फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। मेरा तालीमी सफ़र बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। मुझे बैचलर ऑफ साइंस एंड सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस UCP में बहुत ही अच्छा रहा। मेरे एकेडमिक के लिए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रूमिंग और वो सब। मुझे BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिग्री मिली है। हमारा 4 साल का सफ़र बहुत बेहतरीन रहा। कॉन्वोकेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के मेयारी तालीम और खिदमत के सफ़र को भी सराहाया गया। कैमरा टीम के साथ अफशान रिजवान, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।